Good morning, students. I hope you all are doing well at your places. And today we'll be doing a very interesting chapter about chess. Right, so let's just begin this chapter, that is chess on move. It is very important. So, the title of our chapter is Chess for Children. It's a very smart move, right? See, in this chapter, you will read about the chess, a suitable game for the children, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा सूट करता है. You just read and of course learn that how चेस हेल्प्स देयर माइंड शार्प, कि कैसे उनके माइंड को शार्प कर देता है. क्या? दैट इज चेस. नाउ नाउ व्हेन वी थिंक ऑफ चेस, जब हम चेस के बारे में सोचते हैं, वी थिंक ऑफ टू एडल्ट्स सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर. हम लोग सोचते हैं कि दो एडल्ट्स हैं, दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं, एंड दे आर थिंकिंग ऑफ वेज एंड मीन्स टू आउटस्मार्ट द अदर, कि कैसे दूसरे को आउटस्मार्ट किया जाए और खुद को और अच्छा साबित किया जाए. बट मेनी पीपल फील दैट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट गेम, राइट? And from my point of view, I also felt like it's a very difficult game. But did you know that the most chess players and champions, they start very young, कि बहुत ही young से वो लोग खेलते हैं. This Vishwanathan Anand, we must have all heard about this famous chess player. He ranked number 2 in what in the world, playing his first chess game at the age of 5. जब ये 5 साल के थे तब ये चेस में सेकंड आए थे, एंड दिस वाज इन 1974. अब आनंद की मदर जो है, शी टॉट हिम द गेम, उनकी मॉम ने उनको सिखाया था, और शी वॉज हिज फर्स्ट ओपोनेंट, वो उनकी सबसे पहली एनिमी थी, ओपोनेंट थी, उनकी ऑपोजिट थी. इन नो टाइम ही हैड टू बी कॉल एज द लाइटनिंग किड. उनको क्या बोलते थे कि चमचमाता हुआ किड है. दिस वॉज बिकॉज he made his move with such speed, वो इतनी अच्छे से अपने मूव इतनी जल्दी करते थे, that in 1987 Anand he won the world junior chess championship in Philippines. And where is Philippines? Its capital, it's Manila, right? And he was the first Asian ever to do so. First Asian थे जिन्होंने सबसे पहली बार ऐसा किया था. Just take the example of the another world championship, chess championship, जिनका नाम है जोस रॉल कैबिलिका of Cuba. What is the capital of Cuba? Cuba की capital है Havana, right? And he was born in 1888, and he was picked up for the chess at the age of 4 by watching his father play. अपने पापा को देख देख के वो चेस को जब वो 4 years के थे तभी वो खेलना स्टार्ट कर दिया था. एंड दिस कापा ब्लांका के जो फादर है वॉज हिज फर्स्ट ओपोनेंट, और इनके ओपोनेंट कौन है? इनके फादर है. सिमिलरली सैम्यूल, जिसको हम सेमी बोलते हैं, रेवस के, जो कि कहाँ के हैं? पोलैंड के हैं. ही ऑल्सो मेड हिज फर्स्ट मूव ऑन व्हाट? ऑन द चेस बोर्ड एट द एज ऑफ 4, जब वो भी 4 years के थे. एंड बाय 1920 when he was 8, by the age of 8 he was just busy touring the cities of Europe की cities के लिए घूम रहे थे इधर उधर, as the wonder boy who could outplay adults, जो कि other adults को भी हरा दे, right? In India, the success of Vishwanathan Anand has encouraged many youngsters कि वो लोग भी participate करें, to take up chess, कि वो लोग भी chess खेलें. Like curly haired Kanupa Hampi from the southern Indian state of Andhra Pradesh, he also learned chess at the age of 6 from her father. जब वो 6 साल के थे उन्होंने अपने फादर से चेस को सीखा. यंगस्टर जो है, he won the world under 10 championship at Cannes. Cannes, it's in France, in 1997 में इन्होंने जीता अवार्ड. Then in 2002 at the young age of 15 years, जब वो लोग 15 years 4 month के थे और 28 days के थे, this Humpy, ये जो हम्पी हैं, he joined the selected batch of the world class championship, जिसको हम बोलते हैं, हम ग्रैंड मास्टर्स बोलते हैं, राइट? एंड हर इंस्पिरेशन, इनकी इंस्पिरेशन कौन थी? दैट वाज जगित पोलर ऑफ हंगरी, and who earned the title of this grandmaster in 1991 at the age of what? At the age of 15 years and 4 months, right? However, Humpy was not the youngest नहीं था from India to become a grandmaster. A little earlier, उनसे पहले भी कौन थे? एक पेंटाला हरिकृष्णा. He was also from the same state at Humpy and had become a grandmaster at the age of what? At the age of 15 years, जब वो 15 years 3 months और 5 days के थे. दिस हरि कृष्णा, इन्होंने चेस लर्न किया था किससे? फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर, दैट इज अपने दादाजी से, व्हेन ही वाज 5 years old, जब वो 5 साल के थे, राइट? नाउ दीज यंग प्लेयर्स हैव फेस स्टिफ कंपटीशन, अच्छा खासा टफ कंपटीशन इन लोगों ने फेस किया है फ्रॉम अनदर मास्टर्स. एंड दिस परिमर्जन नेगी, ही इज फ्रॉम इंडियाज कैपिटल, जिसका नाम है दिल्ली. वी ऑल नो इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली. दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी. ही बिकेम द सेकंड प्लेयर इन द वर्ल्ड टू गेट अ टाइटल ऑफ व्हाट? ग्रैंड मास्टर इन जुलाई 2006 में इनको सेकंड अवार्ड मिला है, सेकंड यंगेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है. ही वाज 13 years 4 years
4 months and 22 days old थे, राइट। इसी तरीके से सर्गे कारजाकिन कहाँ के हैं ये? यूक्रेन के। यूक्रेन ही होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द यंगेस्ट प्लेयर टू बिकम अ ग्रैंड मास्टर अगेन, इन्होंने भी ऐसा ही जीता एंड ही वॉज 12 years and 7 months in 2002 में ये 12 साल 7 महीने के थे एंड ही अचीव्ड हिज फीट। व्हाट डू यू मीन बाय फीट? इज अ फेस्टिवल, राइट। क्लियरली दीज यंगस्टर्स दे बिलीव इन दिस स्लोगन, ये स्लोगन पे बिलीव करते हैं दैट चेस फॉर चिल्ड्रन रादर देन ओनली चेस फॉर अडल्ट। ऐसा मत सोचिए कि चेस सिर्फ अडल्ट के लिए है, बच्चों के लिए भी बना हुआ है, राइट। नाउ इट इज ऑल्सो ट्रू दैट नॉट एवरीवन हु प्लेज द स्पोर्ट्स इट बिकेम अ चैंपियन। ये बिल्कुल सच है कि कोई भी अगर स्पोर्ट्स खेल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो चैंपियन बन चुका है। Yet it's a fact, yes ये एक फैक्ट है that the world has become chess crazy, सब लोग चेस के लिए बहुत क्रेजी हो चुके हैं, स्पेशली एज फार एज फॉर द चिल्ड्रन इज कंसर्न, कि अगर बच्चों की बात करें तो बच्चे बहुत ज़्यादा क्रेजी हो गए हैं। और इंडिया में ऑफ कोर्स इन इंडिया द सर्दर्न सिटी ऑफ चेन्नई की सर्दर्न सिटी इट वाज फॉर अ लॉन्ग कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते थे, लॉन्ग कॉल्ड एज द चेस कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट। एंड आफ्टर ऑल इट प्रोड्यूस यही है जो क्या कहते हैं सिटीज हैं, यही वो प्रोड्यूस करती है चैंपियन लाइक विश्वनाथन आनंद, मैनुअल एरन, वी रवि कुमार, ऑल दीज बिलोंग्स टू साउथ दैट इज फ्रॉम चेन्नई। एंड टुडे द क्रेज है, इसका जज्बा है जो इट हैज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री के अक्रॉस फैल चुका है। द नंबर ऑफ चेस क्लब्स इंक्रीज हो चुके हैं एज वेल एज द नंबर ऑफ टूर्नामेंट्स प्लेस थ्रू आउट द ईयर। अब टूर्नामेंट्स भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं रशिया में और सेवरल अदर यूरोपियन कंट्रीज में एज वेल एज इन कनाडा में। कनाडा कैपिटल क्या है? आई थिंक कनाडा की कैपिटल, कनाडा में डॉलर चलता है, राइट। एंड चेस इज द पार्ट ऑफ स्कूल ऑफ द कैरिकुलम, स्कूल के कैरिकुलम का जो है चेस उनका एक पार्ट है। कैपिटल है कनाडा की, आई थिंक इट्स कैनबेरा, यस, राइट। इनफैक्ट देर इज वन गेम, एक गेम है दैट हेल्प्स द प्लेयर इन मेनी वेज, बहुत चीज़ों में मदद करता है, नॉट ओनली ऑन द चेस बोर्ड, सिर्फ चेस बोर्ड पे नहीं, टू प्ले बेटर इट बिकम्स नेसेसरी कि आप चेस की बुक्स को भी रीड करें, राइट। सो नो वन विल एक्यूज ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन रीडिंग, और फिर अब तुम्हें कोई भी ये नहीं बोलेगा कि आप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है रीडिंग में। यू हैव टू एबल टू कीप द स्कोर्स, अगर आपको स्कोर्स चाहिए तो योर अर्थमेटिक स्किल्स, जो आपकी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की जो स्किल्स हैं, दे गेट strengthen, means they get more stronger, and more importantly you are the general of your army on the board पे आप खुद ही अपने head हैं and you have to think carefully before making any move। कोई भी move करने से पहले आपको बहुत अच्छे से सोचना पड़ेगा, otherwise your opponent जो है it will corner your troops, कि तुम्हारे corners को अपने कब्जे में कर लेगा। Now for this you have to able to think of various moves कि हम कहाँ से move कर सकते हैं and choose the best possible one। and naturally जो आपकी thinking है, now your thinking it becomes faster as you learn to decide faster। आप decisions जल्दी ले पाएंगे। and next time you have to choose between a present of books कि वो books हैं, roller skates हैं, या फिर वो एक प्ले स्टेशन है, एंड यही जो डिसीजन है इट विल बेनिफिट यू, और यही डिसीजन आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा। लास्टली यू हैव टू ट्राई योर हार्डेस्ट टू विन, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड ट्राई करें कि आप जीत जाएं, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू हेट योर ओपोनेंट, कि आप अपने ओपोनेंट से नफरत करें। रिमेंबर यू हैव टू शेक हैंड्स विद द कंटेस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द गेम के खत्म होने के बाद यू हैव टू शेक योर हैंड्स विद द कंटेस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द गेम। यू मस्ट हैव सीन, जब हम वर्ल्ड कप देखते हैं तो कैसे जो सारे प्लेयर्स होते हैं वो लाइन में आते हैं और सारे प्लेयर्स एक दूसरे प्लेयर्स से मिलते हैं, राइट। तो डोंट पुट चेस बाय थिंकिंग दैट इट्स टू ब्रेनी, कि ये बहुत ही ज़्यादा ब्रेन स्ट्रॉमिंग है फॉर यू। जस्ट पुट ऑन योर थिंकिंग कैप, अपने दिमाग ढंग से सोचिए, शाउट आउट लाउड, जोर से बोलिए चेस फॉर चिल्ड्रन। मूविंग ऑन टू द वर्ड बास्केट, द फर्स्ट वर्ड इज आउटस्मार्ट, मीन्स टू गेन एन एडवांटेज ओवर somebody by acting in a clever way, कि आप बहुत ही cleverly किसी के सामने इतना ज़्यादा उसका एडवांटेज ले जाएं। outplay means to play much better than someone you are competing against, जिससे आप compete कर रहे हैं उससे अच्छा खेलें। curriculum is, we all know the subjects that are included in the course of study, or you can say they are taught in school or colleges, right? Moving on to the exercise, we have to complete this oral exercises. Please complete all these question answers on your own. Moving on to tick the correct options. The chess is played between dash players. The chess is played between two players. Right?
Vishwanathan Anand, he played chess his first time when he was, I think when he was 5. Yes, when he was at 5 years old, right? Right? Who taught chess to Anand? उनको chess किसने सिखाया था? उनकी mother ने. Let me see it. Yes, her mother. Right? And this Jugit Polar of Hungary, he got the title of GM at the age of, when he was, this Jugit Polar of Hungary, he got the title of GM when he was at the age of 15. It's D. Right? Now, moving on to this fill in the blanks, many people felt that it is a dash game. It's a very difficult game. Right? In 1987, the Anand जो है, he won the World Junior Championship. देखिए, this is a proper noun. That's why we can see that J, C, and over here W, they all are capital, right? Dash was not the youngest from India to become a grandmaster. That is Humphrey. It's a proper noun, and of course, the blank is from the starting. That's why H capital है. The number of dash, that is the number of chess clubs भी increase हो चुके हैं अब. Don't put off your chess by thinking that it is too dash. It is too brainy for you. Right? Moving on to the true and false. Chess is a game for 3 people. I think it's false. It's of course for true people. Chess can be played only by the adult people. It's false. Of course, it can be played by children also. Anand ki mother named the kid as Lightning Kid. Of course, it's true. Vishwanathan Anand does not want our children to take up the chess. This is false. And this Pentela Hari Krishna is from Hampi. I think it's true. It's true, and everyone who plays chess thinks slowly. It's false, right? Moving on to the question answers. Please do all these question answers on your own. And I hope you all understood this chapter. This chapter was about chess. Please keep doing hard work for your exam and stay blessed. Thank you.